السلام علیکم۔ ایک ملاقات ضروری ہے کے تحت لکھنؤ کی معروف مصنفہ عشرت ناہید سے دلچسپ گفتگو، ساتھ ہی حیدرآباد کی درخشاں شخصیات سے آپ ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ شہر کی تہذیب ہے جی، یہ محبتوں کا امین شہر ہے، یہاں پر پذیرائی ہوئی ہے شمالی ہند سے جتنے جب بھی جو آئے، مولوی عبدالحق آئے اور بھی دیگر جتنے بھی لوگ آئے، رسوا آئے، مرزا ہادی رسوا آئے، سبھی کو یہاں پر داغ آئے اور نہیں آئے، یہاں تک کہ ہم عشرت بھی آ گئی۔ تو یہ اس شہر میں کشش ہے، اس شہر میں ایک کشش ہے جو یہاں کی فضاؤں میں گھلی ہوئی ہے کہ یہ شہر جو ہے رواداری کی اپنی ایک مثال رکھتا ہے۔ جب حیات بخشی بیگم جو ہے اورنگزیب سے ملنے کے لیے گئی تھی اور ان کا جو انداز تھا اور ان کا جو رعب تھا وہ آنکھوں میں ہے، اور وہ کرنل پیٹرک زیب النساء کے دیوانے اس شہر میں ہوئے تھے، تو وہ ساری تہذیب جو ہے جی جو تہذیب ہے وہ تہذیب کے درمیان بیٹھ کر کے دو تہذیبوں کا سنگم ہے آج۔ جی جی، لکھنؤ اپنی تہذیب میں ہے اور حیدرآباد اپنی تہذیب، دونوں نوابوں کے شہر، دونوں نوابوں کے شہر۔ اب ہم بیگمات کے شہر میں جانے والے بیگمات کے شہر۔ اچھا، تم بناتے کیوں نہیں؟ بنات میں ہوں، خاموش تماشائی ہوں، یہ ہے زیادہ نہیں ہے ایکٹیو ایکٹیو نہیں۔ کیسے رہوں گا ایکٹیو میں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے رہوں وہاں پہ۔ ایک بار 11 روپے کی ڈانٹ بھی کھائی ہے میں نے اسے۔ اچھا، تم کیا نیا کام کر رہی ہو، جاب کر رہی ہو، بچے کو جرمن جو گئی تھی؟ جی جی، کون سی؟ عشرت ہے معین؟ عشرت معین عشرت معین، اس کے بارے میں بتائیے۔ عشرت معین صاحبہ جو ہے وہ افسانہ نگار ہے، کالم نویس ہے، صحافی ہے، ترجمہ نگار ہے، سفر نامہ نگار ہے، اور پنجابی بھی مل کے جی دونوں۔ یہ ایک ان کے ساتھ جیسے اسلم بھائی کا اور آپ کی جوڑی تھی، ویسے ہی وہ لوگ ہیں، دونوں ہی ادب سے جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں تحسین شعبہ تعلیمی نسواں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے وابستہ ہوں۔ جی، خواتین کے بارے میں پڑھتی ہوں، خواتین کے بارے میں سوچتی ہوں، خواتین کے ادب پر کام کرتی ہوں، یہ میرا میدان ہے۔ خواتین کے اور چاہتی ہوں جی جی جی، کہ کسی بھی خاتون کا کوئی معمولی سا بھی درد ہو تو اس کو دور کر پاؤں، یہی کوشش میری رہتی ہے۔ اور اسی رشتے کے حوالے میں یہ ادبی جو محفل ہے ہم بہنوں جی اس سے جڑی ہوں، اور آج یہاں خاص طور پر عشرت ناہید کے سلسلے سے ہم جمع ہوئے ہیں، اس کی بہت خوشی ہے۔ جب بھی کوئی خاتون کامیابی کی منازل طے کرتی ہے جی مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ جی، آج اسی خوشی کے اظہار کے لیے میں یہاں موجود ہوں، ماشاء اللہ۔ ناہید کا استقبال کرتی ہوں دل سے۔ حیدرآباد میں مولانا آزاد دودھ ڈالو، چائے بنا، سب کو بہت آگے جاؤ گی، کیونکہ وہ جس طرح سے اردو افسانے لکھ رہی ہیں، تحقیق، تنقید اور تخلیق جی تینوں لے کر چل رہی ہیں۔ تینوں میدانوں میں بہت کم خواتین بیک وقت کام کرتی ہیں۔ جی، جی دعائیں اور تمام اور آمنہ کے بارے میں بتاؤں، آمنہ نے نسائی ادب پہ بہت بڑا کام کیا ہے، جو جی، حیدرآبادی خواتین اور ہندوستان کی خواتین کے لیے بہت کارآمد ہے۔ ان کی کتابیں اور ان کا کام ہم سب کے لیے بہت کارآمد ہے، اور ہمیشہ سیمینار وغیرہ اسی تعلق سے ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھے ہوئے۔ قمر جمالی صاحبہ کچھ بولیے پلیز۔ کوئی اور شعر بولتا کیا کریں اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن؟ میرا نام قمر سلطانہ ہے، لیکن اصل میں قمر جمالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاں، ایک پنکھا بند کر دو، ادھر والا۔ ویسے تو تمام اسناد میں نے کام کیا ہے، لکھا ہے بہت، لیکن افسانہ میرا عشق ہے۔
तेलुगु जी, वाली जी। मेरी पहचान भी अफसाना निगारी। वो वाली चाय भी बेचता हूँ। अगर ठीक है मैंने नॉवल भी लिखा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अफसाना निगारी बुलाएं। जी, और इश्क है मुझे अफसाने से। माशाल्लाह, क्या बात है। और अल्लाह की ऐसा करम- इश्क हमें भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 11 किताबें आ चुकी हैं, जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ज़बानों में मेरी कहानियाँ ट्रांसलेट हुई हैं, जी। मुंतकिल हुई हैं, अंग्रेज़ी, तेलुगु, उड़िया, कश्मीरी और गुजरी। माशाल्लाह। ज़बान थी गुजरी। जी हाँ, तो बहुत सी ज़बानों में ट्रांसलेशन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हैदराबाद में थोड़ी बहुत जानी पहचानी जाती है। जी जी, थोड़ी बहुत। हैदराबाद के बाहर जी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो उर्दू की बस्तियां हैं, जी तो वहाँ तक मोहतरमा कमर जमाल साहबा की शोहरत है। जी, माशाल्लाह। और इस वक्त मौजूदा दौर में जो खातून अफसाना निगार हैं, जी। उसमें एक नुमाइंदा नाम और बेशक, बड़े बेशक। खुशकिस्मत हैं, जी। हैदराबाद से हैं। जी हम बहुत फख्र से करते हैं कि उनके साथ उनको देखते हैं, उनके साथ उठकर बैठते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सफर है। उनके बगैर हमारी हर महफिल अधूरी है। कमर जमाली के बगैर हर महफिल अधूरी है। पहले भी वो मेरे घर में मेरी दावत पे आती रही है, बल्कि ये उन्हीं का अपना घर है, उनके भाई का घर है ये। अच्छा। हाँ बगैर हाँ ये बात सही है। ये सही और कही आज ही मेरी खुद खुशबख्ती है कि मैं और उनके नहीं- साथ हूँ और आप लोग के सबके नहीं- साथ हूँ। जी ये जी, हाँ बोलिए बोलिए। अफसाने और कहानियां लिखती थी। हाँ, एक हाँ। बार असलम ने इनसे कहा, ऑल इंडिया रेडियो में जब भी गई, तो हाँ, असलम ने कहा कि कहानियां सब लिख रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, हाँ, मगर ड्रामे के लिए कोई तैयार नहीं होता, ड्रामा कोई नहीं लिखता। तो साहब उसके बाद से कमर जमाली साहबा ने ड्रामे लिखे। हाँ, एक मंजू अच्छा। कमर, एक मंजू कमर थे और एक कमर जमाली हैदराबाद में। 2 अफसाने निगारों के अलावा जिनको ड्रामा निगार बनाया असलम ने, वो ये अच्छा। लोग थे। और ऐसे ड्रामे लिखे गए साहब कि ऑल इंडिया रेडियो की तारीख में बहुत कामयाब ड्रामे बने। अच्छा, कमर जमाली माशाल्लाह। ने ड्रामे लिखे। जी जी खाली जी। एक बात बता तो दी, जिस वक्त मैं भरत कहानी कायदा तभी मैं मैं बहुत बोल रही हूँ, इतना सीवी इनका वो था कि मैं पढ़ती ही चली गई कि ये क्या क्या नहीं कर लिए हैं। माशाल्लाह से अभी तो भाभी बता रही थी, जी मैं भाभी से पहले मैं असलम भाई से मुतारिफ हूँ, हाँ हाँ क्योंकि असलम भाई ऑल इंडिया रेडियो के पेक्स थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। जी तो उस जमाने में मैं अफसाने नशर करने जाया करती थी। तो असलम भाई बोले, खमर क्यों ना तुम ड्रामा लिखो। जी। पहले तो मैंने वहाँ पर ऑडिशन करवाए हम्म, कि तुम्हारी आवाज़, अब तो मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है, लेकिन तुम न्यूज़ रीडिंग के लिए, इंटरव्यूज के लिए, इंटरव्यू तो मैंने बहुत लिए हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे भी लिए हैं और टीवी पे भी लिए हैं। बहुत से लोगों के इंटरव्यूज किए मैंने, बहुत, जब इब्तदाई दौर था वो बात अच्छा। कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा कि ड्रामा कैसे लिखेंगे असलम भाई? बोले कि नहीं, तुम सुनती हो ना रोजाना, इतवार, हर इतवार को होता हाँ, है। उतार के साथ। हाँ, तो 9:30 हाँ सुनती थी। उसके बाद मैंने ड्रामे लिखे और मेरी एक किताब भी है संगज़े के उन्वान से। अच्छा, ड्रामों का मजमुआ है मेरे, रेडियो ड्रामों के। माशा तो ये वो जमाना था जब रेडियो का बहुत ही जरीन दौर था इतना इंतजार रहता था वो इतवार का। रेडियो सुनते थे। हाँ, तो तफरी का वही तो जरिया था, वही तो जरिया था। जी जी। आतिक अंसार हैं। अच्छा। महफिल ख़वातीन को कई सालों से जानती हूँ। आई थिंक मैं 79 या 78 कौन सा 79? अस्सलाम वालेकुम। 1979। आइए आइए जरा आइए। तो मेरा बहुत ही यहाँ का जो महफिल ख़वातीन का जो पहली बुनियाद है वो मैं देख चुकी हूँ। तो जब हम ये मेरे पास किताब है डॉक्टर इशरत नाही साहब की, और आज ये किताबें हम सब के लिए लखनऊ से आई हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इशरत नाही बहुत अच्छी राइटर हैं और हमारी इनकी दोस्ती 7-8 साल पुरानी। जी जी मैं एक अफसाना निगार हूँ, मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं। जी, और अपने बारे में क्या बताऊँ मैं, बस और अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा कि मेरे वालदेन जो कि वो बहुत अदब नवाज थे, और मैं भी अपने भाई से बात कर रही थी कि ये जो है, मैं शबीना आपा ने बुलाया है और ये सब मैं अपने वालदेन का बोया हुआ काट दूँगा, क्योंकि मेरे घर की भी ये रवायत है कि शहर में कोई भी आता था अदीब, वो हमारे घर ज़रूर महफिल होती थी। तो वालदेन को नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं वो उनके औलादों के हक में दुआएं। और ये जो अफसाने लिखे हैं, लिखना शुरू किया, ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी। मेरी अम्मी ने मुझे 2 ख्वाब खुद ही मेरी आंखों में डाल दिए थे, मेरे अंदर डाल दिए थे।
वो बचपन से कहती थी मेरी बेटी प्रोफेसर होगी, ये था उनको। एक ऐसा इलाका था वहाँ कि वहाँ लड़के भी ज़्यादा नहीं पढ़ते थे उस टाइम में, उन्हें पापा के खानदान में नहीं थे, लेकिन अम्मी मेरी जो थी वो एक बड़े तालीम याफ्ता घराने से, तो उनको ये था कि मैं खाने को चाहे लाऊं लेकिन बच्चों की पढ़ाई करूँ। तो वो उन्होंने माशाल्लाह से 3 भाई थे मेरे, तीनों PhD किए, बहनें अंग्रेजी में किए हुए, 2 भाई उर्दू में ही है। फिर मेरा रहा, बहनों की शादी जल्दी कर दी थी तो वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो ये बता रही थी मैं कि अम्मी का ख्वाब था कि मेरी बेटी प्रोफेसर हो, और दूसरी ख्वाहिश उनकी थी कि मेरी बेटी अफसाने लिखे, राइटर भी बने। तो मुझे भी इतना वो नहीं था, BA के ज़माने में मैंने 1-2 अफसाने लिखे थे, लेकिन फिर वो सिलसिला ख़त्म हो गया था मेरा। फिर उसके बाद मैं 2012 में यूनिवर्सिटी में आई, यूनिवर्सिटी के बाद जो है तो फिर मैं सोशल मीडिया पर आई। यहाँ मेरा राब्ता हुआ आलमी अफसाना फोरम, एक ग्रुप है फेसबुक पर। जी जी, तो वहाँ पर वहीद कमर साहब और दीगर जो लोगों को मैं जुड़ी, तो ये कहिए कि मेरी अफसाना निगारी की बाज़ियाफ्त या दोबारा जो शुरुआत हुई तो आलमी अफसाना फोरम से हुई। और मैं जर्मनी गई तो मैंने इस चीज़ का उनको क्रेडिट दिया, बहुत वो इस चीज़ को मानते हुए मैंने कहा नहीं, मैं किसी महफिल में आपका जिक्र ऐसे नहीं होता है कि मैं ना करूँ, क्योंकि बहुत उन्होंने मुझे मोटिवेट किया उस वक्त। खुर्शीद हयात साहब थे, नूरुल हसनैन साहब थे, ये लोग सब एक बहुत अच्छा अदबी हल्का मुझे मिला था कि जिनके साथ उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और फिर मैंने अफसाने दोबारा से लिखना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से चला, और फिर ये जो है मैं अफसाने लिखती रही, और ये हुआ कि मेरा पहला ही अफसानवी मजमू आया तो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने मुझे इसका पुलिंग अवार्ड भी दिया। उसके बाद एक बड़ा अचीवमेंट ये रहा मेरा जी, मंजिल बेनिशान, इसी उन्वान से एक अफसाना भी है। और उसके बाद दूसरा अचीवमेंट ये रहा कि मुझे उर्दू अंजुमन बर्लिन ने मुझे 2017 में दावत की कॉन्फ्रेंस में, और मैंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की, और वहाँ पर भी अफसाना महफिल में अफसाना भी पढ़े, और सर सैयद के ख्वाब करके मैंने एक अपना मजमून पढ़ा जर्मन लोगों में, और वो जर्मन वो लोग ज़्यादा थे जो वहाँ पर उर्दू सीखते थे। हाँ, एक बड़ी तादाद थी, ये हैरान कुन बात थी जी। तो बस ये ऐसे ही छोटा सा तारुफ था मेरा, और बाकी ये है कि मैं मौलाना आज़ाद हुमायूं के लखनऊ कैंपस में। हम चाहते थे कि वक्त को मुट्ठी में कैद कर लें, अफसोस वो रेत बनकर मुट्ठी से फिसल ही गया। इस यादगार मुलाकात के लिए मैं मोहतरमा शबीना फरशोरी साहिबा का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। खुदा हाफिज़। अब मैं चाहूँगी कि नाहिद अपने बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाहिद ताहिर हूँ फ्रॉम रियाद, सऊदी अरब। जी थैंक यू। तो चलो हाँ ठीक है ना। तो एक छोटी मोटी सी कलमकारा हूँ, अफसाने निगार हूँ। जी जी। इधर रखिए। अरे बोलो, तुम्हें क्या कहते, तुम बोलते रहो, तुम बोलते रहो भाई। अरे हाँ, तुम बोलते हो, तुम्हारी तस्वीर की क्या जरूरत है? ठीक है।